We will discuss trigonometry in this class. देखो प्रसाद, सबसे पहले हम आपको ये बताएं कि हमारे पास जनाब एक अदद सर्किल मौजूद है और सर्किल का जो एरिया होता है वो सबको मालूम है जनाब, ये होता है पाई आर स्क्वायर और सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर। अच्छा जी, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। अच्छा जी, अब हमारे पास अगर इसी सर्किल में से हम एक अदद पीस पकड़ लें तो जनाब ये कहलाता है सेक्टर। सेक्टर के अंदर जनाब ये रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये जो है वो एंगल है थीटा और जनाब ये होती है इसकी आर्क लेंथ। एस का फॉर्मूला होता है एस इज इक्वल टू आर थीटा और इसका एरिया होता है हाफ आर एस या फिर हाफ आर स्क्वायर थीटा और इसका पेरीमीटर होता है जनाब 2r प्लस एस। ठीक है बेटा, और इसमें आप ये बात ध्यान में रखते हैं कि थीटा जो है वो होना चाहिए रेडियंस में। तो इसका मतलब थीटा अगर रेडियंस में नहीं है तो हम उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। सो एंगल शुड बी इन रेडियंस। अब रेडियंस के लिए कन्वर्जन आपको पता होनी चाहिए। देखें, 1 रेडियन जो है, रादर 1 रेडियन से बेहतर हम बताएंगे आपको 1 रेवोल्यूशन। 1 रेवोल्यूशन बेसिकली 1 सर्किल होता है। 1 सर्किल, तो इसका मतलब ये बराबर होगा 360 डिग्री के और ये बराबर होता है 2 पाई रेडियंस के। तो अगर हम दोनों को बराबर रखें तो हमारे पास रिजल्ट मिलता है कि 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियंस के, 1 डिग्री बराबर आता है पाई बाय 180 रेडियन के, जो कि तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली बराबर होता है 0.017 रेडियन के। ठीक है, और इसी तरीके से अगर आपने 1 रेडियन निकालना है तो ये बराबर आता है 180 डिवाइड बाय पाई डिग्री के, जो कि
अप्रोक्सीमेटली बराबर होता है 57.1 डिग्री के। सो ये दो कन्वर्जन आपने याद रखनी है, ठीक है जी। सो लेट्स टॉक अबाउट क्लॉक। वी हैव three types of hands. First is the second, then minute, then hour. So basically 60 seconds is equals to 1 revolution. So we can say that 60 seconds is equals to 360 degree, and 1 second is equals to 6 degree. Any problem in that? Now for minute hand, it's the same. That is, for 60 minutes, it's the 1 revolution, that is 360 degree. And now we can say that 1 minute is equals to 6 degree. So 1 hour is equals to, sorry, 1 minute is equals to 6 degree. So for now, we will move on to hour. We know that a hour hand makes a complete revolution in 12 hours. So one revolution is basically 360 degree, and 1 hour will be equals to, when we divide it by 12, so we will get 30 degree. Okay. So we have two questions. So first of all, what we will do in part 1, we can see that we have total minutes of 50. So for part 1, we have 60 multiplied by 50 seconds, that is 3000 seconds.
So if 1 second is equals to 6 degree, then for 3000 second, what we will do, we will do 6 degree multiplied by, that will become 18,000 degree. So now for minute, so it should be 6 degree multiplied by 50. So it will be 300 degree. And for hour, it is 50 divided by 60 into 30 degree. So it will become 25 degree. So in the first question, we had from 310 to 4, 5, no, 315. So we had 50 minutes. So for 50 minutes, we have the second hand, and for second hand, what we did 50 multiplied by 60 seconds. So we got 3000 seconds, and for 1 second, it's 6 degree. So for 3000 seconds, we had 18,000 degree, or if we get 18,000 divided by 360, we can get the number of revolutions as well. Now for the minute hand, we have 50 minutes, and for 1 minute is 6 degree, so it will be 300 degree. And now for the hour hand, these are 50 minutes. To convert it to 60 divided by 60 to convert it to hour, then multiply by 1 hour means 30 degree, so we will get 25 degree. So what was the next question? You were asking from 2:15 a.m. to 5. We had 2:10 a.m. to 5:30 a.m. Corrected, it should be a.m.
So now for the second hand, first of all, we will go to hour hand. So for hour hand, these are 3 hours plus 20 minutes. So it should be 3 plus 20 upon 60. So it will become 3 whole number 1 upon 3 r, that is 10 upon 3. So these are 10 upon 3 hours multiplied by 30 degree. So 3 into 10 is 30 and 10 into 10, yes it. So हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा जनाब 100 डिग्री. ओके, इसी तरीके से अगर आपको मिनट हैंड का निकालना है तो आप क्या करेंगे, 10 अपॉन 3 आपके पास आवर्स थे, इसको आप नंबर ऑफ मिनट्स से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास हो जाएंगे 200 मिनट्स. और अगर आपको इसका डिग्री निकालना है तो 200 को आप मल्टीप्लाई कर दें 6 डिग्री से तो यू विल गेट 1200 डिग्री. ओके, बात समझ में आ गई सबको? सो 1 डिग्री हैज़ 60 parts. Each part is known as minute. This minute has no relation with the minute of the clock. Okay, and 1 minute has 60 parts, that is equals to second. So we can say that 1 minute is equals to 1 upon 60 degree and 1 second is equals to 1 upon 60 minute as well as 1 upon 3600 degree. So for suppose we want to convert 20 degree, 10 minutes and 30 seconds into radians. What we have to do, first of all, we will convert into degree. So it should be 20 plus 10 upon 60 plus 30 upon 3600. Now we will take 3600 as LCM. So it should be 72,000 and it should be 600 and this should be 30. So it will become 72630 divided by 3600 and that can be cancelled out to. So now what we have to do, we have to convert it into radians, and for radians what we will do multiplication with pi and division with 180, so we will get the answer. Okay, so this is the conversion from degree to radian. And first of all, this is the conversion of minute second to degree. This is the value of degree. Okay, this is the value in the degree. Got it? So now we have take a look at the quadrants. अच्छा जी,
So we have 4 quadrants. This is the first quadrant. This is the second quadrant. ठीक है. And this is the third quadrant. And this is the fourth quadrant. ठीक है. अब होता क्या है हमारे पास कि हमारे पास 4 क्वाड्रेंट है. ठीक है. अब जनाब हमारे पास जो ये है ये होता है जनाब 0 डिग्री. ठीक है जी. ये होता है जनाब हमारे पास 90 डिग्री. ठीक है जी. ये होता है जनाब हमारे पास 180 डिग्री. और जनाब हमारे पास ये होता है 270 डिग्री. ठीक है. सो हम क्या कहते हैं, हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो क्वाड्रेंट्स हैं वो कहाँ से कहाँ तक होते हैं. अभी हमारे पास होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट. उसके बाद होता है हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट. उसके बाद होता है हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट. और उसके बाद होता है हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट. अच्छा जी. अब हमारे पास जो स्टार्टिंग वैल्यू है और जो एंडिंग वैल्यू है वो हम देखते हैं. जनाब हमारे पास जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है वो 0 से लेकर होता है 90 डिग्री तक. उसके बाद 90 से लेकर 180 डिग्री तक. उसके बाद 180 से लेकर 270 डिग्री तक. और फिर 270 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक हमारे पास क्वाड्रेंट्स मौजूद होते हैं. ठीक है जी. हमारे पास जो साइन कन्वेंशन है वो कैसी होती है. देखिए हमारे पास पहले में साइन, बल्कि नहीं, ऑल पॉजिटिव होते हैं. दूसरे में हमारे पास साइन कॉसेक पॉजिटिव होते हैं. तीसरे में हमारे पास टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं. और चौथे में हमारे पास कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं. ठीक है जी. तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि हमारे पास पॉजिटिव कौन है. तो जनाब पहले में सारे पॉजिटिव होते हैं, जबकि नेगेटिव जो है वो कोई भी नहीं होता. तो जनाब पहले में साइन और दूसरे में साइन और कॉसेक पॉजिटिव है. तो बताइए कि नेगेटिव कौन कौन होगा. नेगेटिव होंगे हमारे पास कॉस, सेक, टेन, कॉट. ये सारे के सारे नेगेटिव होंगे. तो तीसरे में टेन और कॉट पॉजिटिव है तो नेगेटिव कौन होंगे. साइन नेगेटिव होगा, कॉसेक नेगेटिव होगा, कॉस नेगेटिव होगा और सेक नेगेटिव होगा. और इसी तरीके से अगर चौथे में कॉस और सेक पॉजिटिव है तो नेगेटिव कौन होगा. साइन नेगेटिव होगा, कॉसेक नेगेटिव होगा, टेन नेगेटिव होगा
कॉट जो है वो नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये हमने क्वाड्रेंट के एतबार से बताया आपको। यही अगर हम आपको अब बताएं फंक्शन के हिसाब से, अब देखें हमारे पास साइन और कॉसेक, फिर हमारे पास टेन और कॉट, और उसके बाद हमारे पास कॉस और सेक। तो हम सबसे पहले बताना चाहते हैं कि ये पॉजिटिव कहाँ पर होंगे, फिर हम बताना चाहते हैं कि ये नेगेटिव कहाँ पर होंगे। तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव कहाँ पर होंगे? फर्स्ट में और सेकंड में। तो जनाब फर्स्ट और सेकंड में ये हो गया साइन कॉसेक पॉजिटिव, और ये हो जाएगा जनाब फर्स्ट और थर्ड में, और उसके बाद ये फर्स्ट और फोर्थ में। तो जनाब ये नेगेटिव कहाँ पर होगा? थर्ड में और फोर्थ में नेगेटिव होगा। जनाब ये नेगेटिव होगा सेकंड में और फोर्थ में, और इसी तरीके से ये नेगेटिव होगा सेकंड और थर्ड में। सो एवरीबॉडी इज क्लियर टिल नाउ? हमें ये देखना है कि कौन कौन से एंगल्स हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में आते हैं। तो देखिए अगर हम बात करेंगे 90 डिग्री प्लस, नहीं, माइनस थीटा की, एक मिनट दीजिएगा, कि हमारे पास जो फर्स्ट क्वाड्रेंट था वो था जनाब 0 से लेकर 90 तक। अब हमारे पास हमें वो एंगल्स देखने हैं जो हमारे पास मौजूद होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट में। हम देखते हैं। तो जनाब कभी आपसे कहा जाए कि जनाब 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। और अगर लिखा हुआ है 90 डिग्री प्लस थीटा, तो ये आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। और इसी तरीके से अगर लिखा हुआ है 180 डिग्री माइनस थीटा, तो ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में ही आएगा। ठीक है, और जहाँ पर हम ये बात आपको बताते चलें कि हमारे पास थीटा बी एन एक्यूट एंगल। ठीक है, कंसिडर थीटा बी एन एक्यूट एंगल। तो जनाब हमारे पास जो थर्ड क्वाड्रेंट है उसके अंदर एंगल आएगा 180 प्लस थीटा, और जनाब एक आएगा 270 डिग्री माइनस थीटा। इसी तरीके से फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल आएगा हमारे पास 270 डिग्री प्लस थीटा, और एक आएगा जनाब 360 डिग्री माइनस थीटा। इज दैट क्लियर टू यू? तो जनाब प्रॉपर्टीज है हमारे पास कुछ 90 प्लस माइनस थीटा के लिए और 270 प्लस माइनस थीटा के लिए फंक्शन जो है वो हो जाता है चेंज।
तो जनाब मिसाल के तौर पे साइन जो है वो कॉस बन जाता है, टेन जो है वो कॉड बन जाता है, और सेक जो है वो कॉसेक बन जाता है। और इसी तरीके से अगर हम बात करें 90 के बजाय 180 की, और 270 के बजाय अगर हम बात करें 360 की, तो फंक्शन डज नॉट चेंज। बात समझ में आ गई? सो फॉर साइन 90 माइनस थीटा it will become cos थीटा बिकॉज हमारे पास हमें ये भी देखना है कि जनाब 90 माइनस थीटा जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में है। बिकॉज 90 माइनस थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड साइन is positive in the first quadrant। ये बात समझ में आई? इसी तरीके से अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, साइन के बजाय यहाँ पर मैं लिखूं tan, तो फिर यहाँ पर आ जाएगा कॉट, और मुझे बताना पड़ेगा कि 90 माइनस थीटा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और tan जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर cos कर दूं, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर जो है वो साइन आ जाएगा। अगर मैंने यहाँ पर 90 माइनस के बजाय 90 प्लस कर दिया, तो 90 प्लस थीटा जो है वो लाई करेगा जनाब सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस जो है वो पॉजिटिव नहीं होता बल्कि नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर हमें माइनस लगाना पड़ेगा। सो फॉर सपोज वी से दैट cosec 90 plus theta will be equals to sec theta, because 90 plus theta lies in second quadrant and cosec is positive in the second quadrant। Okay, so let's say we have sec and now we have 180 plus theta, sorry 180 minus theta, it will be equals to sec theta itself, because it is clearly written here for 180 plus theta and 360 plus theta function does not change, function जो है वो change नहीं करता है। तो sec 180 माइनस थीटा जो है वो sec थीटा ही आएगा, because 180 minus theta lies in second quadrant and sec is negative in the second quadrant, so therefore we will put a negative sign here। Once again another example we have, for suppose it is cot, so it will become minus cot, because 180 minus theta lies in the second quadrant and cot is negative in the second quadrant। बात समझ में आ गई? So let's take another example। Cot 180 plus theta is equals to cot theta। Cot 180 plus theta lies in the third quadrant and cot is positive in the third quadrant। Okay, so let's take another example। We have sine 180 plus theta
it will remain the same, that is sine theta, because 180 plus theta lies in the third quadrant and sine is negative in the third quadrant. So we will put a negative sign before the sine theta. Let's take another example. For say cos 270, let's say tan 270 minus theta, because 270 minus theta lies in third quadrant and tan is positive in the third quadrant, and we can clearly see that for 270 plus theta the function changes itself. So we have changed the function from tan to cot. So let's say another example. We have cos 270 plus theta. For 270 it will become sine theta, because 270 plus theta lies in the fourth quadrant and cos is positive in the fourth quadrant. So let's take another example, the last example. Or say we have tan 360 minus theta will remain tan theta, but it is in the fourth quadrant, therefore we will put a minus sign here. So will be tan is negative in the fourth quadrant. So these were the some properties, and now you can handle the properties. So angle from x-axis. Let's take a look. So let's say we have these two lines making an angle theta. So for suppose we have this angle as theta. Okay. So this angle is everywhere. So we have this angle equals to theta. So what will be the angle in the first quadrant if this is theta? For suppose this is an angle equals to alpha. Okay. So alpha is here.
alpha is here, alpha is here, and alpha is here. Alpha is everywhere. So we will take this angle as alpha, but we will take this angle as 180 degree minus alpha. Why is that so? Because the angle is always anti-clockwise. So this angle should be subtracted from 180, while this angle is more than 180, so it should be 180 plus alpha, while this angle should be 360 minus alpha, because it is rather 0 degree or 360 degree. So we have 4 quadrants, and now we have seen the different angles in the different quadrants. So in the first quadrant, the angle from x-axis will be theta. In the second quadrant, it should be 180 minus theta. In the fourth quadrant, it should be 180 plus theta. And in the fourth quadrant, it should be 360 minus theta. So if it is to be written in the radian form, so 180 becomes pi, and 360 degree becomes 2 pi. So जनाब, ये हमारे पास हमने निकाल लिए एंगल्स जो कि हमारे पास क्वाड्रेंट के एतबार से आएंगे. ठीक है जी, बात समझ में आ गई कि पहले में थीटा होगा, दूसरे में 180 माइनस थीटा होगा, तीसरे में 180 प्लस थीटा होगा, चौथे में 360 डिग्री माइनस थीटा होगा. अब जनाब, अगर हम नेगेटिव कंसिडर करें, सो इस वाले एंगल को कहीं कहीं पर माइनस थीटा भी लिखा जाता है. इस वाले को माइनस थीटा भी लिखा जाता है. चौथे क्वाड्रेंट का एंगल माइनस थीटा भी लिखा जाता है. ओके, सो हमें इसकी जरूरत कहाँ पेश आएगी? फॉर सपोज हमें फाइंड करना है जनाब हमें फाइंड करना है साइन 120 डिग्री. ठीक है जी, हमें फाइंड करना है कॉस और से डबल टू 5 डिग्री, और फॉर से हमें सॉल्व करना है tan 330 डिग्री. So first of all, decide the quadrant and decide the multiple. So ये हमारे पास क्वेश्चन है. फिर आप डिसाइड करें क्वाड्रेंट, फिर आप डिसाइड करें मल्टीपल. मल्टीपल की क्या ज़रूरत है? देखें, एंगल्स आर गिवन इन मल्टीपल्स ऑफ 30 डिग्री, 45 डिग्री
60 डिग्री, ठीक है। तो 30, 45 और 60 के मल्टीपल्स नॉर्मली गिवन होते हैं आपको, सही। सो आपने जनाब देखना है सबसे पहले क्वाड्रेंट। तो 120 डिग्री आपको पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, 225 जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, और 330 जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो है वो पॉजिटिव होता है, यहाँ पॉजिटिव लिखा। थर्ड में कॉस जो है वो नेगेटिव होता है, तो यहाँ हमने नेगेटिव लिख दिया। और फोर्थ में टैन जो है वो नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर हमने नेगेटिव लिख दिया। अब आपने ये देखना है कि कौन किसका मल्टीपल है। तो जनाब 120 डिग्री जो है वो 30 का मल्टीपल भी है और 60 का मल्टीपल भी है। तो आप देखेंगे बड़ी वैल्यू, तो आपने यहाँ पर लिख दिया 60 डिग्री, यहाँ पर आपने लिख दिया 45 डिग्री, और यहाँ पर आपने लिख दिया 30 डिग्री। तो जनाब साइन 120 का आंसर वही होगा जो हमारे पास साइन 60 का होगा। बात समझ में आ गई। और जनाब ये आंसर होता है अंडर 3/2। बात समझ में आ गई। तो जनाब हमारे पास कॉस 225 का वही आंसर होगा जो कि कॉस 45 का होगा, लेकिन हमें माइनस लगाना पड़ेगा क्वाड्रेंट की वजह से। और जनाब ये आंसर आएगा 1/√2। और इसी तरीके से tan 330 का आंसर वही होगा जो tan 30 का होगा, और बिकॉज ऑफ क्वाड्रेंट जो है वो हम यहाँ पर माइनस लगा देंगे। तो जनाब हमारे पास tan 30 का जो आंसर आता है वो आता है 1/√3। बात समझ में आ गई। सो इट शुड बी -1/√2 and it should be -1/√3. So now you must learn this table. We have sin theta, we have cos theta, and we have tan theta. And the value for theta in degree and in radian. So sin 0 is 0, sin 30 is 1/2, sin 45 is 1/√2, and sin 60 is √3/2, and sin 90 is 1, and sin 180 is 0. So these are the values for sin, and repeat them in the reverse order. Repeat them in the reverse order. So you will get the values of cos. Okay. Okay. And by dividing, you can get the values of 10. So if you want to learn them,
Otherwise, this is the trick. Okay. Sine upon cos is 10, while tan 90 is infinity and tan 180 is 0. So for the reciprocals, we have the same concept for the tan, that reciprocal the values for the tan. So we will get the values of cot. Okay. So for sec, it is 1, it is 2, it is under root 2, and this is 2 by root 3, and this is infinity, and this is minus 1. Okay. And we reverse the order to find the values of the cosec. So this is the table for the angle values. Now we will talk about the angles given in multiples of 90 or 180. So first of all, we have sine theta. First of all, we will take a look at cos theta. So cos odd multiples of pi will give you +1, while odd multiples देंगे आपको -1, और इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई देंगे आपको +1, और आपके पास अगर आपके पास ऑड मल्टीपल्स हैं π/2 के, तो इसका आंसर आपके पास 0 आएगा. That was written in the radian form. So for the degree form, I will write it should be 180. Okay, and this should be 90. So we have some examples. For say, we have cos 6 pi,
cos 5 pi and cos 5 pi by 2. So cos 6 pi will be equals to 1. Cos 5 pi will be equals to minus 1, and this will be equal to 0. Or suppose we have more examples like in the degree form. We have cos 1440 degree. We have cos 540 degree, and we have cos 810 degree. Just you have to learn the angle, you have to learn the table of 918. So it should be plus 1 because 140 is equals to what? It is a 144. 144 is a multiple of 18, even multiple of 18. और इसी तरीके से 540 जो है वो इवन ऑड मल्टीपल है 180 का, 180 इंटू 3 हो जाएगा. सो अगर आप इसको लिखना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं. आप लिख सकते हैं कि भाई 1140 जो है वो 180 मल्टीप्लाई बाय 3 है, और 810 जो है वो क्या है? एट वन ज़ीरो जो है वो क्या है? 9 मल्टीप्लाई बाय 90 है. और इसी तरीके से सॉरी यहाँ पर 540 आएगा. और इसी तरीके से 1440 जो है वो मेरा ख्याल है 18 कितने सा 18 6 होगा गालिबन 8 सा. ओके, सो 8 इंटू 180. सो आप देख सकते हैं कि इसके आंसर ऐसे क्यों आ रहे हैं. ठीक है जी, बात समझ में आ गई है? क्लियर है जी? अच्छा, इसी तरीके से अब हम एग्जांपल लेते हैं कॉस की, सॉरी साइन की. सो कॉस में ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई हो तो भी 0 आएगा, इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई हो तो भी 0 आएगा, और ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 हो सो आपके पास क्या होता है कि प्लस माइनस 1 आता है. तो आपने डिसाइड करना होता है कि प्लस 1 कब आएगा और माइनस 1 कब आएगा. सो इट शुड बी साइन हियर. सो साइन का आंसर हमारे पास 0 आता है, ऑड मल्टीपल्स हों या इवन मल्टीपल्स हों. और अगर ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 हैं तो हमारे पास जो है वो प्लस 1 भी आता है और माइनस 1 भी आता है. और अब कैसे हम डिसाइड करते हैं कि प्लस 1 कब आता है और माइनस 1 कब आता है, वो ज़रा देखते हैं. लेकिन सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा साइन, इन सबको मैंने साइन कर देना है. देखो 7 माइनस 1 किया हमने, आपके पास 6 आया. 6 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4, इसलिए हम यहाँ पर माइनस लगाएंगे. जबकि यहाँ पर 9 मल्टीपल है 90 का, तो 9 माइनस 1 किया 8 आ गया. तो आप कह सकते हैं कि 8 इज अ मल्टीपल ऑफ 4.
तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा +1। तो इस तरीके से आप +1 और -1 डिसाइड करते हैं मल्टीपल ऑफ 4 को देख के। और अगर आप इसका मुझसे जनरल फार्मूला पूछें तो मैं आपको जनरल फार्मूला बता देता हूँ कि जनाब हमारे पास साइन, अगर हमारे पास 4n +1 की फॉर्म है इनटू 90 डिग्री, जनाब इसका आंसर आता है +1। और अगर यहाँ पर 4n -1 इंटू 90 डिग्री की फॉर्म होगी तो आपके पास आंसर आता है -1। बेसिकली आपने ये फॉर्म देखनी होती है कि आपके पास +1 आना है या -1 आना है। तो जनाब हम जब यहाँ पर सेवन का केस देखते हैं तो 7 जो है वो यहाँ लाई करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो नंबर्स आते हैं वो आते हैं हमारे पास कौन कौन से, हमारे पास 3 आता है, 7 आता है, 11 आता है एंड सो ऑन। सो इसका मतलब अगर 90 के साथ 3 पड़ा हुआ है, 7 पड़ा हुआ है, 11 पड़ा हुआ है तो आपके पास सॉरी 3 7 सॉरी 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 1 पड़ा हुआ है, 5 पड़ा हुआ है, 9 पड़ा हुआ है, ये सीरीज पड़ी हुई है 90 के साथ तो आपके पास +1 आएगा। और अगर आपके पास आपके पास 3 पड़ा हुआ है, 7 पड़ा हुआ है, 11 पड़ा हुआ है तो आपके पास आंसर आएगा -1 की फॉर्म में। सो हेयर n belongs to integers, so here n belongs to integers, okay। अब जनाब हम आ जाते हैं tan के लिए। सो tan के लिए होना क्या है, कुछ भी नहीं होना, tan के लिए सब कुछ सेम रहेगा, साइन की जगह यहाँ पर tan आ जाएगा, साइन की जगह पर यहाँ पर tan आ जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पर cos के बजाय गलती से लिख दिया था मैंने, साइन आएगा, यहाँ पर जनाब tan आएगा। और बस 1 की जगह पर ना सेम कॉन्सेप्ट रहेगा साइन वाला, बस 1 की जगह पर हमारे पास इन्फिनिटी आ जाएगा, साइन की जगह पर tan आएगा, क्योंकि हम tan का आंसर निकाल रहे हैं साइन अपॉन कॉस करके। जनाब यहाँ पर साइन की जगह पर tan आएगा और 1 की जगह पर यहाँ पर आ जाएगा इन्फिनिटी। सो ये जितने भी सवालात हैं अगर मैं इनमें tan की जगह पर साइन डालता हूँ तो सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, सेम कॉन्सेप्ट रहेगा जनाब जो कि मैंने साइन पे सिखाया है, बस 1 की जगह पर आपका अल्लाह वाला करे इन्फिनिटी आ जाएगा। वही कॉन्सेप्ट रहेगा जो साइन में मैंने आपको पढ़ाया, tan में वही कॉन्सेप्ट रहेगा, बस फर्क इतना सा है कि 1 की जगह पर यहाँ पर इन्फिनिटी आ जाएगा। तो वही कॉन्सेप्ट है साइन वाला, बस यहाँ पर 1 की जगह पर इन्फिनिटी आ जाएगा। बार बार एक ही बात कह रहा हूँ कि वही कॉन्सेप्ट है, बस 1 की जगह पर इन्फिनिटी आ जाएगा। क्लियर है जी। एक और एग्जांपल है हमारे पास, जनाब मैंने आपसे कहा कि इफ cos थीटा इज इक्वल्स टू 5/13
देन मैं आपसे मांगता हूँ कॉट थीटा। तो आप क्या करेंगे, आपने कहा भाई बेस जो है बराबर है 5 के, हाइपोटेन्यूज जो है वो बराबर है 13 के। देन क्या करते हैं आप ये करते हैं कि भाई बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यूज कर लें। सो आपके पास परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी, परपेंडिकुलर की वैल्यू आएगी जनाब 12। सो अगर आपको अब कॉट थीटा निकालना है तो कॉट थीटा होता है जनाब 1/tan थीटा, और ये हो जाएगा जनाब 1 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जनाब इसके अंदर अगर आप इसको इक्वेट कर लें तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और इसका जो फाइनल आंसर आएगा हमारे पास वो आएगा 5/12। तो इस तरीके से आप इस वाले क्वेश्चंस को, इन वाले क्वेश्चंस को इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। ठीक है जी। अब जनाब हमारे पास मैंने आपसे कहा कि फाइंड साइन इनवर्स ऑफ 1/2। ये मैंने आपसे कहा। देखिए 1/2 का आंसर जो है ना वो जनाब आता है 30 डिग्री, बट साइन इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, देयरफॉर हमारे पास दो आंसर आएंगे। जनाब हमारे पास जो आंसर 1 आएगा वो आएगा थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, और हमारे पास जो आंसर 2 आएगा वो आएगा जनाब थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 150 डिग्री। क्योंकि हमारे पास साइन पॉजिटिव फर्स्ट में भी था और सेकंड में भी था। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूँ कि जनाब आपने कॉस इनवर्स करना है 1/√2 का, इनफैक्ट -1/√2 का, तो आपका आंसर आना चाहिए था 45 1/√2 की वजह से। ठीक है, हमने क्या कहा, हमने कहा भाई बट कॉस इज नेगेटिव। कहाँ पर जनाब, सेकंड क्वाड्रेंट, और कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। एक आपके पास आएगा जनाब थर्ड क्वाड्रेंट के हिसाब से, जो कि होगा जनाब 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, सॉरी 30 नहीं 45, जो कि आएगा आपके पास 135 डिग्री, और एक आएगा जनाब आपके पास 180 प्लस 45 डिग्री, जो कि हो जाएगा 225 डिग्री। समझ में आ रही बात। तो क्वाड्रेंट को देखते हुए हम आंसर्स निकालेंगे। इसी तरीके से अगर मुझे मालूम करना होता tan इनवर्स √3/2, सॉरी √3 करना होता सिर्फ, तो √3 पे आपको पता है कि जनाब आंसर आता है 60।
और क्योंकि जो tan है वो नेगेटिव होता है सेकंड में और फोर्थ में, तो आपका जो पहला आंसर है वो आएगा जनाब 180 माइनस 60, जो कि हो जाएगा 120। और अगला आंसर आएगा आपका चौथे क्वाड्रेंट के हिसाब से, जो कि होगा 360 माइनस 60, जो कि आंसर आएगा 300 डिग्री। Is that clear to all of you? So I think I should wind up the class. The basic trigonometry is over.